Good morning dear students. This is third part of lesson 4 states of matter. In this video we will discuss about effects of heating and cooling and changes in our surroundings. First we will discuss about effects of heating and cooling. When we heat a substance, the molecules of this substance vibrate more, and this increase the volume of the substance. How? They need more space for vibrating more. Okay students, when we heat a substance, the molecules vibrate more and they need more space for vibrating more, and this increase the volume of the substance. And what is expansion? The increase in the volume of a substance due to heating is called expansion. Okay, the increase in the volume of a substance due to heating is called expansion. हम लोग एक सब्सटेंस को हीट करेंगे तो वो सब्सटेंस का मॉलिक्यूल्स बहुत फास्ट मूव करते हैं. वो मूव करने के लिए या वाइब्रेट करने के लिए वो मॉलिक्यूल्स को एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत है. एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत है. तो वहाँ क्या होता है, वो सब्सटेंस का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है. सो व्हाट इज एक्सपेंशन? द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस ड्यू टू हीटिंग. वो हीटिंग की वजह से क्या है, वो सब्सटेंस का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है ना. इससे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपेंशन कहते हैं. इज इट क्लियर? व्हाट इज एक्सपेंशन? The increase in the volume of a substance due to heating is called expansion. Different substances expand different amounts or equal amount of heating. Okay, different substances expand different amounts or equal amounts of heating. For example, solids. Solids expand very little, but liquids expand more than solids, and gases expand the most on heating. Solids इतना ज़्यादा expand नहीं करते, लेकिन liquids solids से compare करेंगे तो liquids expand करते हैं, and gases heat करेंगे तो बहुत expand. Is it clear? So हम लोग फीवर आएंगे तो हम लोगों का फीवर आएंगे तो हम लोगों का बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं ना. तो कैसे मेजर करते हैं? थर्मोमीटर यूज करते हैं. ये थर्मोमीटर के अंदर एक तीन ट्यूब है. ये तीन ट्यूब के अंदर एक लिक्विड है, क्या है, मर्क्यूरी. ये मर्क्यूरी हम लोगों की बॉडी की हीट की वजह से एक्सपांड हो जाते हैं. वो जो पॉइंट में पहुंच जाते हैं वो है हमारा बॉडी का टेम्परेचर. Is it clear? Next we will discuss about contraction. Next is contraction. When we cool a substance, the molecules of the substance move very less and they need less space. Okay, the molecules come closer and they need less space. So we can say things contract on cooling. Things contract on cooling. Different substances contract differently on equal amounts of cooling. For example, solids. Solids contract very little and liquids contract more than solids, and gases contracts the most on cooling. So students, what is expansion? Heat की वजह से substance का वॉल्यूम increase हो जाता है. Okay, वही है expansion कहते हैं. लेकिन कूलिंग contraction क्या है? हम लोग एक substance को या एक कुछ things को हम लोग
evaporation of water, ripening of fruits, growth of plants and animals. All these changes are happening around us all the time, and we can divide these changes into two main types: physical change and chemical change. हमारे आसपास बहुत सारा चेंजेस हमेशा होता रहता है. ये चेंजेस को हम लोग मेनली we can divide these changes into two types: physical change and chemical change. First one is physical change. In a physical change, no new substances are formed. We can easily get back the original substance. एक फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है. ओके, फिजिकल चेंजेस में कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, एंड वी कैन इजीली गेट बैक द ओरिजिनल सब्सटेंस. हम लोगों को क्या है, वही ओरिजिनल सब्सटेंस वापस मिलेगा. इज इट क्लियर? फिजिकल चेंजेस में कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, वही ओरिजिनल सब्सटेंस हम लोगों को वापस मिलेगा. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, हम लोग वाटर को फ्रीज करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा? आइस मिलेगा ना. वही आइस को हम लोग क्या है, मेल्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? हीट करेंगे तो क्या मिलेगा? हम लोगों को वाटर मिलेगा. देखो, ये वाटर का मॉलिक्यूल्स और आइस का मॉलिक्यूल्स दोनों सेम है. हाँ, वाटर का मॉलिक्यूल्स और आइस का मॉलिक्यूल्स दोनों सेम है. वहाँ कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है. देखो, लिक्विड को हम लोगों ने क्या किया? फ्रीज किया ना, तब हम लोगों को क्या मिला? सॉलिड मिला. वहाँ कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है, बस वहाँ मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट में कोई कुछ चेंजेस आ रहा है. बस वहाँ कोई न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म हो रहा है. देखो, पहले हम लोग वाटर को फ्रीज किया ना, तब हम लोगों को क्या मिला? आइस मिला. वही आइस को हम लोग हीट करेंगे तो हम लोगों को वापस क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा. सो इट इज ए फिजिकल चेंज. एक फिजिकल चेंज, इसमें हम लोग देखा है कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ है, और हम लोगों को वापस वही वाटर वापस मिला है. इज इट क्लियर? सो सम मोर एग्जांपल्स आर देयर. आई विल टेल यू. ब्लोइंग ए बैलून. हम लोग बैलून के अंदर एयर फिल करते हैं ना, वहाँ कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो गया है क्या? नहीं. हाँ, ब्लोइंग ए बैलून, टीयरिंग ए पेपर, हाँ, ब्रेकिंग ऑफ ए ग्लास, मिक्सिंग ऑफ सैंड एंड वाटर, ये सब में कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ है. ओके, ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंजेस. इज इट क्लियर? नेक्स्ट we will discuss about chemical change. Next is chemical change. In a chemical change, one or more new substances are formed. Chemical change में new substances form होता है. Okay, chemical change में new substances form होता है, and we cannot easily get back the original substance. Chemical changes में original substance को हम लोगों को वापस नहीं मिलेगा. लेकिन फिजिकल चेंज में क्या है? कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, ओरिजिनल सब्सटेंस हम लोगों को वापस मिलेगा. लेकिन केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, और वही ओरिजिनल सब्सटेंस हम लोगों को वापस नहीं मिलेगा. एक बेस्ट एग्जाम्पल है, अगर आप लोग एक पेपर को जलाएंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा? हाँ, ऐश और स्मोक मिलेगा ना. ये ऐश और स्मोक न्यू सब्सटेंसेस. ओके, वहाँ ये ऐश और स्मोक से हम लोगों को वापस वो पेपर मिलेगा? नहीं मिलेगा ना. सो इट इज ए केमिकल चेंज. एक केमिकल चेंज है. मोर एग्जाम्पल्स आर देयर. क्या है? ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. हाँ, decomposition of plants and animals, ripening of fruits,
rusting of iron. All these are examples of chemical change. So students, hope you understood what is expansion, contraction, physical change and chemical change.